Well, Pawar play continues to peak in Maharashtra. All the focus today was in Mumbai, where both Ajit and Sharad Pawar factions are flexing their political muscles. Both had competing meetings today, and there was, of course, a count of how many MLAs turned up at each. 17 MLAs were present at Sharad Pawar's meeting, whereas Ajit Pawar was joined by 31 NCP MLAs today. Sharad Pawar opened up on his nephew Ajit's rebellion and said that he should have spoken to him if there were any issues. He also assured that the party name and symbol will stay with his faction, as consent of office bearers was not taken before allying with the BJP. On the other hand, Ajit Pawar called his uncle Sharad Pawar stubborn and asked the 82-year-old to step aside. NCP MP Supriya Sure hit back at Ajit Pawar for talking about her father's age and reminded him that the BJP once called NCP a corrupt party. In another development, it has come to light that NCP leader Ajit Pawar has approached the Election Commission on the 30th of June, staking claim to the party's name as well as symbol. He's also declared himself as president with support of 40 lawmakers. The ECI has also received a letter dated July 3rd from Sharad Pawar's faction informing the panel that disqualification proceedings has been filed with the competent authority against 9 MLAs of NCP, including Ajit Pawar. The EC is likely to process applications in the coming day and ask both sides to exchange respective documents submitted before it. But meanwhile, let's listen in to all of the scathing comments that came from the two Pawar camps. का मला लोकांच्या समोर त्या ठिकाणी विलन केलं जातं कळत नाही? काय माझी चूक आहे? या संदर्भामध्ये या सगळ्या गोष्टी होत असताना आजही माझं ते दैवत आहे, आजही माझं ते श्रद्धास्थान आहे. पण कार्यकर्त्यांनो, महिलांनो, तरुणांनो, तुम्ही सांगा, एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो. IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात. राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं. अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या. त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते. तुम्ही आशीर्वाद द्या ना. चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं. आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना. त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं. बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही. बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा. बाकी काही ऐकून घेऊ, काहीही ऐकून घेऊ. आणि ही लढाई एका व्यक्तीच्या विरोधात नाहीये, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आपल्याला लढायचंय. ही लढाई आहे ती. त्यामुळे कोणी सांगत असेल की चिन्ह आम्ही घेऊन जाऊ, चिन्ह जाणार नाही, जाऊन देणार नाही, पण चिन्ह घेऊन जात असं तर कुठलंही चिन्ह असतं जोपर्यंत सामान्य माणसाच्या अंतःकरणामध्ये त्या पक्षाचा विचार आणि कार्यकर्त्याची भूमिका सखोल तोपर्यंत काही चिंता करण्याचं कारण नाही. To speak on this, I'm joined by, I would say, a veteran of Maharashtra politics, one who knows how all of the parties in the fray function very well and is a senior Congress leader. Mr. Sanjay Nirupam is joining me on the show this evening. Mr. Nirupam, thank you for speaking with us on Beyond the Headline. Mr. Nirupam, you have been seeing what has been happening in the last few days of Maharashtra politics, the comments made by Mr. Ajit Pawar today, Mr. Sharad Pawar today. Do you think the NCP is going to head in the same direction as the Shiv Sena around a year ago, or can the NCP still be retained with Mr. Sharad Pawar?
See, Maharashtra's politics is going through its worst phase at this point of time. It all started in 2019, October, November, in the month of October, November, when Shiv Sena decided to part ways from BJP and they decided to join hand with Congress and NCP. Since then, BJP is furious. Since then, BJP thinks that the power has been snatched from them. And since then, when BJP was in opposition, it was basically trying its best to create, or engineer, or execute a split in the MVA. They could not break all three parties. But at the end of the day, they decided to break the party individually. So one party was Shiv Sena, which was vulnerable. A lot of people were not very happy with Mr. Uddhav Thackeray and his style of working. And that's why they designed the split, they engineered the split, and they finally executed the split very successfully. And Shiv Sena was completely divided into two pieces. And after dividing Shiv Sena, they gave an offer to Mr. Eknath Shinde to become chief minister, and since then, for last 1 year, he is the chief minister of Maharashtra. But BJP is still not satisfied. It is not still contented. They want more. Dil mange more wala jo मामला होता है, dil mange more. So they decided to create a split in NCP. Why NCP was divided? What was the reason? What was the flashpoint to execute such a huge split or such a huge rebel against Mr. Sharad Pawar in NCP? That was because of the opposition unity. The opposition parties were trying to get united, and almost 17 parties attended a meeting which was called by Mr. Nitish Kumar, the Chief Minister of Bihar, in Patna, and that went very successful. And it was decided that next meeting immediately next month will take, and that the main agenda was to stop BJP. The main agenda was to dethrone Mr. Narendra Modi, and somehow the BJP government should not continue in 2024 Lok Sabha election, and the opposition headed a new government should be installed in next Lok Sabha election in the coming year. That has basically disturbed Mr. Modi, Amit Shah, and all the BJP clan. And finally, Mr. Prime Minister Modi ji, he was making a huge speech in Madhya Pradesh just a couple of days back that NCP ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया और तमाम घोटालों की उन्होंने लिस्ट बताई थी. आज उन घोटालों का जो मेन the kingpin of all the scam in NCP is none other than Ajit Pawar. And finally, taking Ajit Pawar into their own lab, they have engineered a huge split in NCP. And now the new problem is going to be created. We are hearing that Ajit Pawar has been tipped off to become chief minister very soon. Eknath Shinde is already as a chief minister. He basically brought all the MLAs from Shiv Sena to become chief minister to fulfill his unfulfilled ambition. And now, if Ajit Pawar is going to be, and Ajit Pawar today Ajit Pawar made a statement that I have come here to become chief minister. And if Ajit Pawar is going to become निरुपम जी, chief minister, आपने सही कहा. अजीत पवार कह रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं. अब जो सिचुएशन है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, शिवसेना में फूट हो चुकी है, एनसीपी में फूट हो चुकी है, महाविकास आघाड़ी के जो 3 में से 2 पार्टियां हैं वो स्प्लिट हो चुके हैं. अब कांग्रेस का क्या रोल बनता है स्टेट में? बिकॉज द क्वेश्चन इज वेयर इज द ऑपोजिशन? अच्छा, देखिए ये जो 3 पार्टियां हैं ना, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, तीनों पार्टियां मैदान में, फील्ड में और कागज पर एक बहुत मजबूत स्थिति में है. भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि सरकार बना ली थी 1 साल पहले, लेकिन उनको समझ में आ रहा था, और कई सर्वे भी आ रहे थे, अलग अलग सर्वे जो इंडिपेंडेंट सर्वेज होते हैं, चाहे सकाल का सर्वे था या लोकमत का सर्वे था, और भी जो इंडिपेंडेंट लोग सर्वे कर रहे थे, साफ साफ दिख रहा था कि इन लोकसभा इलेक्शन बीजेपी इज गोइंग टू लूज बैडली. मतलब आउट ऑफ 48 शायद बीजेपी को 5-7 सीटें आएंगी. ये जो सर्वे था वो कहीं ना कहीं मोदी जी को और पूरे बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप को बड़ा परेशान कर रहा था. इसलिए वो चाहते थे कि कोई एक पार्टी पूरी तरह से निकल के आ जाए. इन तीनों में से कोई पार्टी निकली नहीं.
यानी तीनों पार्टियां इंटैक्ट थी एमवीए में। तो आखिरकार जब तीनों में से कोई पार्टी निकल के नहीं आ, कांग्रेस तो जाएगी नहीं, कांग्रेस तो पूरे नेशनल लेवल पर बीजेपी से लड़ रही है, तब उनके सामने ऑप्शन था कि या तो शिवसेना को वापस ले लिया जाए या फिर एनसीपी को। दोनों में से कोई भी पार्टी एमवीए छोड़ के निकलने के लिए तैयार नहीं थी। तो आखिर में उनके सामने यह ऑप्शन था कि एमवीए के एक और पार्टनर को कमजोर किया जाए, जैसे शिवसेना को इन्होंने कमजोर किया। अब आपका सवाल ही का पोजीशन कहां है? आज भी एमवीए बहुत इंटैक्ट पोजीशन में है। आज भी एमवीए के वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ा है, चाहे कागज पे या जमीन पे। आज भी एमवीए के सर एमएलएस गए हैं, एनसीपी के एमएलएस गए हैं, शिवसेना के एमएलएस गए हैं, लेकिन शिवसेना का जो कैडर है और एनसीपी का जो कैडर है वो आज भी अपने लीडरशिप के साथ है। और जैसे कैडर साथ है वैसे उनका वोटर भी साथ है। तो आज भी लगभग 48%, 48 पॉइंट समथिंग ये एमवीए का अपना वोट परसेंटेज है महाराष्ट्र में एज ऑन टुडे, व्हिच इज हेडेड बाय कांग्रेस वोट परसेंटेज ऑफ 25%। एंड बीजेपी चाहे कितना भी जोड़ ले सबको, वो कुल मिला के 36, 37, 38% के आसपास है। मतलब 10% एमवीए आज भी आगे है। तो जितना बीजेपी इस अनएथिकल तरीके से तोड़फोड़ करेगी उतना ही बीजेपी का वोट बैंक कम होगा और एमवीए का वोट बैंक बढ़ेगा। कर्नाटक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन महाराष्ट्र की कहानी कर्नाटका से अलग है। महाराष्ट्र की कहानी कर्नाटका से अलग है। कर्नाटका में इट्स थ्री हॉर्स रेस जिसमें जेडीएस वाज ऑलवेज द +1। यहाँ महाराष्ट्र में एनसीपी स्ट्रॉन्ग, शिवसेना स्ट्रॉन्ग, कांग्रेस थोड़ा वीक ओवर द इयर्स, बीजेपी बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। सो देयर आर 4 प्लेयर्स। माय क्वेश्चन टू यू मिस्टर निरुपम इज व्हाट हैपेंस टू पवार सीनियर? क्या शरद पवार अपनी पार्टी बचा पाएंगे? आज अजीत पवार कह रहे हैं आप 83 साल के, आप रिटायर कर जाए। क्या ये रेजोनेट करेगा वोटर्स के बीच में, एनसीपी के वोटर्स के बीच में? ठीक है, 2 बातें हैं। आपका जो सवाल है उस सवाल का भी जवाब देता हूं। उससे पहले आपने कहा कि महाराष्ट्र कर्नाटक से अलग है। जी नहीं, कर्नाटक भी हिंदुस्तान में है, महाराष्ट्र भी हिंदुस्तान में, और दोनों पड़ोसी प्रदेश हैं। तो जिस तरीके से कर्नाटका में जोड़ तोड़ करके एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक सरकार बनाई गई डिफेक्शन के जरिए या फिर ऑपरेशन लोटस के जरिए, बिल्कुल उसी तरीके से जोड़ तोड़ करके एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार चल रही है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे कर्नाटका में जो भी छोड़कर आए थे वो सब हारे, वैसे ही शिवसेना और एनसीपी के लोग भी बुरी तरह से आने वाले चुनाव में जब जनता की अदालत में जाएंगे तो बुरी तरह से परास्त होने वाले। अब रह गई बात आपका जो दूसरा सवाल क्या था? आपका सवाल थोड़ा एक बार फिर से याद दिलाइए कि हाँ, शरद पवार जी का। नहीं, शरद पवार क्या अपनी पार्टी, अपनी लेगेसी को बचा पाएंगे? अजीत पवार कह रहे हैं कि आपकी रिटायरमेंट का टाइम आकर चला गया। मैं आ रहा हूं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, जिस अजीत पवार को पाल पोस के ग्रूम करके शरद पवार जी ने इतना बड़ा नेता बनाया, आज अजीत पवार जिस तरीके से शरद पवार जी के ऊपर खुल करके थोड़ा क्रिटिकल अंदाज में आकर के बोल रहे थे, वो बहुत अच्छा नहीं लगा। महाराष्ट्र संतों की भूमि है, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, महाराष्ट्र यहाँ पर तुकाराम की भूमि है। महाराष्ट्र में लोग जरा नैतिकता में ज्यादा विश्वास करते हैं, और ऐसे में अगर अजीत पवार ने जो बातें कही उसको बहुत अच्छे ढंग से लोग नहीं लेंगे। अब आपका सवाल है कि क्या शरद पवार एनसीपी बचा पाएंगे? शरद पवार एक योद्धा है, वीर है, और बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियन है। दिन रात 24 घंटे 24x7 पॉलिटिक्स करने वाले नेता है। बिल्कुल उनको जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, और उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी अजीत पवार को। अगर अजीत पवार भी मेहनत करते हैं, शरद पवार भी मेहनत करते हैं, तब कहना मुश्किल है। लेकिन अजीत पवार अगर मुख्यमंत्री बनकर के और सत्ता में अगर डूब गए और शरद पवार पूरे महाराष्ट्र के दौरे पे निकल गए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपनी पार्टी बचा लेंगे। भले उनको छोड़ करके उनके एमएलए, उनके पुराने साथी जो उनके साथ थे, वो भ्रष्टाचार के आरोपी थे, ईडी के केसेस में फंसे हुए थे, वो चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शायद कैडर को फिर से वो रिजुनोवेट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना से लोग छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी मुंबई में शिवसेना की स्थिति बड़ी मजबूत है। महाराष्ट्र के जो भी शिवसेना का अपना कैडर है वो आज भी शिवसेना के साथ है। कुछ एक जिलों को छोड़ दें तो शिवसेना अभी भी मजबूत स्थिति में है यहाँ पे। बिल्कुल उसी तरह से एनसीपी भी शायद अजीत पवार के प्रभाव या फिर छगन भुजबल के प्रभाव या फिर बाकी उनके जो सब बाकी लोग नेता लोग या प्रफुल्ल पटेल जी के प्रभाव, इन सब के प्रभाव से एक आध जिले में थोड़ा बहुत असर पड़े, लेकिन महाराष्ट्र में पैन महाराष्ट्र लीडर आज भी एनसीपी के शरद पवार है। और इस शरद पवार पर जितना अटैक करेंगे उतना ही सिंपैथी उनको मिल सकती है। और शरद पवार
पवार अगर इस उम्र में जिस तरीके से एक योद्धा की तरह बाहर निकले थे परसों, इसी तरह से अगर बाहर निकल गए तो मुझे लगता है कि वो अपनी पार्टी बचा लेंगे और एमवीए की एक ताकत बने रहे। संजय निरुपम जी, आप ऑफ कोर्स कांग्रेस के सीनियर नेता है, लेकिन आप इन सारी पार्टियों को और इन सारे नेताओं के वर्किंग स्टाइल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो एज अ बिट ऑफ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आई वांट टू आस्क यू कि क्या अजीत पवार का जो रोल बताया जाता है एनसीपी में कि ऑर्गेनाइजर वो थे, करने वाले वो थे, सीनियर पवार का प्लान होगा लेकिन एग्जीक्यूट करने वाले अजीत पवार थे, उनकी भी काफी ज्यादा पकड़ है पार्टी पर, उसको देखते हुए फिर ये सवाल है कि एक तरफ अजीत पवार, दूसरी तरफ सुप्रिया सुले, अगर उस तरह का कंपटीशन है तो फिर पलड़ा कहां पर भारी है? निश्चित तौर पर अजीत पवार एक बड़े नेता हैं और उनका जनाधार भी ज्यादा है, हर जिले में उनकी पकड़ भी ज्यादा है, वर्षों तक सत्ता में रहे हैं। पहली बार एक व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ऐसा निकल के आया है जो अलग अलग मुख्यमंत्रियों के अधीन लगभग 5 बार उप मुख्यमंत्री बना है। एक बात कही गई, किसी ने कही या किसी अखबार में छपा है कि आमतौर पर जो हमारे यहाँ लड़कियों की शादी होती है तो परिवार कहता है अखंड सौभाग्यवती बनो, और आज अजीत पवार के बारे में ऐसा लगता है कि उनको ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया कि अखंड उप मुख्यमंत्री बनो। तो अखंड उप मुख्यमंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की भी समझ है और उन्होंने बहुत सारे कार्यकर्ता तैयार कर रखे अलग अलग जिलों में, तो वो उनकी ताकत है। वो शायद ताकत सुप्रिया सुले के पास नहीं होगी, लेकिन मैं सुप्रिया सुले से अजीत पवार को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं सीनियर पवार से। और सीनियर पवार का की आज भी पकड़ पूरे महाराष्ट्र में जबरदस्त है, उनके लिए उनकी फॉलोइंग है और उनको लेकर के एक सिंपैथी है। तो अगर वो इस उम्र के बंधन को तोड़ करके अगर वो निकल गए पूरी ताकत से, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक संघर्षपूर्ण स्थिति होगी एनसीपी में, और एनसीपी को बचा पाने में शायद शरद पवार कामयाब हो सकते हैं। ओके, तो ये काफी फेयर असेसमेंट था आपका। अब आते हैं 2024 पर, महाराष्ट्र के लिए स्टेट इलेक्शन, लोकसभा चुनाव, दोनों में पूरी मेहनत लगेगी। अगर मैं आपका असेसमेंट मांगू इन लीडर्स का, ऑनेस्ट असेसमेंट संजय निरुपम जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, शरद पवार, कहां पर ये खड़े होते हैं जो 2 बड़े चुनाव आने वाले हैं उनमें, और ऑफ कोर्स कांग्रेस पार्टी, कौन आगे है कौन पीछे है? देखिए, अभी 2 बड़े सर्वे हुए थे महाराष्ट्र में, खासकर ये अजीत पवार की बगावत से पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। तब उस सर्वे में साफ साफ दिखा कि 48% लेकर के एमवी आ गया, और उसमें 25% वोट कांग्रेस का दिखाया गया, 15% वोट एनसीपी का दिखाया गया और 12% वोट शिवसेना का दिखाया गया। इसलिए आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे एमवीए में बहुत मजबूती से आगे बढ़ी। इसका कारण क्या है? एक तो कर्नाटक चुनाव की जीत के बाद एक जबरदस्त उत्साह है लोगों में, महाराष्ट्र में भी और बल्कि पूरे देश में उत्साह का संचार हुआ। और उससे पहले जो राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, जिसके तहत लगभग 4 महीने तक लगभग 3500 किलोमीटर वो पैदल चले और अलग अलग वर्ग के लोगों से मिले, बातें की, और एक बड़ा एक हाई वोल्टेज कैंपेन हुआ हमारा, जिसके तहत एक मैसेज हम लोगों ने दिया कि जो एक नफरत का माहौल पूरे देश में फैलाया गया है, उसका जवाब अगर कोई दे सकता है, उसको अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी रोक सकते हैं। उसके साथ साथ भुखमरी बढ़ रही है देश में, गरीबी बढ़ रही है देश में, बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन मुद्दों को जिस तरीके से हम लोगों ने उछाला है उसका असर है, और उसको लेकर के कांग्रेस के प्रति जो कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक था, जो लोग कांग्रेस से प्यार करते थे, जो नाराज होकर चले गए थे या एक बीजेपी के दुष्प्रचार की वजह से हमसे दूर हो गए थे, वो सब वापस आए हैं। तो कांग्रेस आज बहुत मजबूत स्थिति में महाराष्ट्र में भी है। अब रह गई बात एमबीए की, तो दोनों चुनाव, चाहे विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, दोनों चुनाव में व्यक्ति मायने नहीं रखता, उस व्यक्ति की पार्टी के फॉलोइंग कितने हैं, उसके वोटर कितने हैं, ये मायने रखता है। फडणवीस जी एक बहुत ही चतुर राजनेता हो सकते हैं, लेकिन उनकी वोटिंग परसेंटेज की एक लिमिटेशन है। नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ताकतवर नेता है, पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर नेता है, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक 35 to 38% से ज्यादा पूरे देश में नहीं है। वही जीतते हैं जहां विपक्ष का वोट डिवाइडेड होता है। तो जहां जहां विपक्ष का वोट यूनाइटेड हुआ, जो कि प्रयास चल रहा है,
चाहे बिहार में हो या फिर यहाँ हो या बाकी अलग अलग प्रदेशों में जहां जहां भी अलग अलग पार्टियां हैं। तो अगर चाहे उत्तर प्रदेश में भी हमारा एक प्रयास चल रहा है, तो अगर विपक्षी पार्टियों के वोट एकजुट हो गए जो 60-65% के आसपास होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मतलब पूरे देश में, महाराष्ट्र में जितना तो बहुत ही मुश्किल है। हमने कई नेताओं की बात की, हमने महाराष्ट्र के संदर्भ में हमने महाराष्ट्र के संदर्भ में कई नेताओं की बात की। कांग्रेस का वो बड़ा चेहरा कौन है? देखिए, कांग्रेस कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। कांग्रेस हमेशा एक आंदोलन से निकला हुआ संगठन रहा है। कांग्रेस में कई लोग रहे हैं, अलग अलग कई बार राय रखने वाले भी लोग रहे हैं। समय समय पर किसी को एक पोजीशन दे दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसको पोजीशन दिया गया है उसी की राय अंतिम राय है। जिसके पास पोजीशन नहीं है और अगर वो सीनियर लीडर है या उसके पास एक अपना एक्सपीरियंस है, तो उसकी भी राय ली जाती है। तो हमारा एक कलेक्टिव नेतृत्व रहेगा, जिसमें निश्चित तौर पर आज के समय, इस समय हमारे अध्यक्ष नाना पटोले जी हैं, उसके बाद अशोक चौहान जी हैं, पृथ्वीराज चौहान जी, बाला साहब थोराट है, और फिर विदर्भ मराठवाड़ा वगैरह में या फिर इधर पश्चिम महाराष्ट्र से बहुत अच्छे नेता हैं। मुंबई में बहुत अच्छे लीडरशिप है हमारे पास। तो वो सब लोग मिलकर के पूरे कांग्रेस पार्टी की ताकत है और पूरी कांग्रेस पार्टी की ताकत को और आगे बढ़ाने में लगेंगे। तो किसी एक नेता, किसी एक व्यक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमको पूरी पार्टी को कैसे फिर से खड़ा करना है, पूरी पार्टी की तरफ जो पूरे महाराष्ट्र के लोग बड़े ध्यान से देख रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर कैसे खरा उतरना है, ये आने वाले दिनों में हमारा एक प्रयास रहेगा। और निश्चित तौर पर पूरे एमवीओ को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है। एक सवाल महाराष्ट्र के वोटर की तरफ से, अगर आप उनकी तरफ से इन पूरी चीजों को देखें, पिछले 5 साल में वोटरों ने सबसे ज्यादा वोट सेना बीजेपी के दल को दिया था, महायुति के। उसके बाद महाविकास अघाड़ी बनकर निकला, उसमें से शिवसेना का स्प्लिट हो गया, एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर बन गए, अब अजीत पवार जी भी निकल गए हैं। वोटर सोच रहे होंगे कि हम किस पर विश्वास करें। महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो जहां उनका मन करता है, जहां उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां फायदा दिखता है, वहां चले जाते हैं। आपको लगता नहीं कि सबके बीच में वोटरों का विश्वास ही उठ जाएगा कि मेरा नेता कल कहां जाएगा क्या पता? देखिए, रविवार को जो घटना घटी महाराष्ट्र की राजनीति में, उसके बाद से एक चुटकुला पूरे महाराष्ट्र में बहुत तेजी से फैला सोशल मीडिया की तरफ, कि महाराष्ट्र के वोटर कह रहे हैं कि साहब हमने तो 1 वोट दिया था एक मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन 1 वोट की बदौलत हमको आपने 3 मुख्यमंत्री दे दिया। पहले फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उद्धव जी बने, उसके बाद फिर अभी एकनाथ शिंदे जी बने। तो महाराष्ट्र के वोटरों की जो एक निश्चित तौर पर जो डिलेमा है, वो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। और महाराष्ट्र के वोटरों की चिंता जो आप कर रही हैं वो भी अच्छी बात है, और महाराष्ट्र के वोटरों की तरफ से जो आपने सवाल पूछा है वो सवाल बहुत मायने रखता है। लेकिन महाराष्ट्र का वोटर बड़ा पढ़ा लिखा समझदार है, बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से नहीं बहता और बहुत ज़्यादा उसको बहकाया नहीं जा सकता। तो वो जो कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में, वो सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा है। जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ा गया, पहले शिवसेना की सरकार गिराई गई, शिवसेना को तोड़ा गया, फिर एनसीपी को तोड़ा गया, फिर अजित पवार को अपने साथ लेकर आए, फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक व्याकुलता है, जो बेचैनी है कि येन केन प्रकार अपने पास सरकार होनी चाहिए, चाहे कितना भी नैतिक या अनैतिक किस्म की कार्रवाई करनी पड़े, ये सब महाराष्ट्र के वोटर, महाराष्ट्र की जनता देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में दोनों जब चुनाव होंगे तो महाराष्ट्र के वोटर इसके ऊपर अपना फैसला देंगे, और वो फैसला मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग नेताओं को जमा करके एक भीड़ तो तैयार कर सकती है, लेकिन उनके पीछे जो जिनकी बदौलत, जिन मतदाताओं के बदौलत वो नेता बने हैं, वो मतदाता उनके पास नहीं आएंगे, और वो मतदाता निश्चित तौर पर जो सत्य है उसके साथ खड़ा रहेगा। और वो सत्य ये है कि जो कुछ हो रहा है इस समय महाराष्ट्र में, वो कहीं ना कहीं बहुत अनैतिक है और एक सत्ता की हवस में चलाए जाने वाला एक अभियान है। Right now, the BJP faction, the BJP, Shinde Sena and Ajit Pawar NCP faction on paper have more than enough MLAs. The true test, of course, will be when the assembly session starts. But the real battle, of course, goes to 2024 for the assembly and Lok Sabha election. Big choice for voters. And frankly, the netas of the state have not proven to be loyal to what they claim at any point. But thank you so much, Sanjay Nirupam, for joining us and giving us your perspective on the Game of Thrones drama going on in Maharashtra right now.